Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 15th of parallel lines chapter name. So everyone open page number 195. The properties of parallel line we already explained in previous video. I attach a YouTube link in description box of the properties of chapter. If you want you can watch the full video, go through the link. Okay, now start the exercise. In the following figure what type of angles are, इस फिगर में आपको बताना है कि किस तरीके के एंगल बन रहे हैं. Open your book, it is better to see the figure. A and F, where is A? Here A and F. Okay, ये किस तरीके का एंगल है? देखिए ये दो लाइन आपकी पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल लाइन. तो एंगल A एंड एंगल F आर alternate interior angle. Right here alternate interior angle. B and P, B and P, ये दो लाइन पैरेलल है ना. एंगल B यहाँ पर बन रहा है, एंगल P यहाँ पर बन रहा है. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल P आर करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक ही तरफ बन रहा हो, दोनों ऊपर बन रहा हो या दोनों नीचे की तरफ बन रहा हो, एक ही साइड हो ट्रांसवर्सल लाइन की. तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं. तो एंगल B एंड एंगल P आर करस्पॉन्डिंग एंगल. X एंड P, वेयर है X एंड P, ये दोनों इन साइड है ना, इंटीरियर है और सेम ही साइड है लाइन के. इट इज नोन एज द को इंटीरियर एंगल. P एंड X आर को इंटीरियर एंगल, सेम एज Y एंड Q आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल. राइट हियर XP आर को इंटीरियर एंगल and Y angle Q are also co-interior angle. Now B and E, where B and E, these two line are parallel lines and a transversal line. So ये एंगल क्या कहलाएगा आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जस्ट अपोजिट एंगल है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा. C and Q, where C, ये C है एंड ये Q, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे. दोनों लाइन के एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ बन रहा है. B and X, Y and D, C and Y, where B and X, BX, ये क्या कहलाएगा? एडजेसेंट लीनियर पेयर. स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना. Y and D एडजेसेंट इन लीनियर पेयर, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा. C and Y, ये C and Y है एडजेसेंट लीनियर पेयर, ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा. C and D वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए दो लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा. T एंड Y आपको T एंड Y, ये T है ये Y है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ओके, नाउ फ्रॉम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन. T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, रिफर द गिवन फिगर. 3 and 4 आर एडजेसेंट एंगल. 3 and 4 आर एडजेसेंट एंगल. यस, इट इज ट्रू. Why? Because these two angles are just opposite of a common side. Right here angles form just opposite side of a common side. Okay, 3 and 12 are alternate angle. 3 and 12, where is 3? 3 and 12 are alternate angle. Yes, it is true. 3 and 4 are just alternate angle, interior alternate angle. So it is true. alternate angle इस तरीके का बन रहा है. 6 and 9 are corresponding angle. 6 and 9 are corresponding angle. false. ये थर्ड पॉइंट आपको false है. इसलिए false है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो थर्ड क्या है आपको? false है. सेकेंड भी ट्रू था. फोर्थ. 3 and 11 are interior angle of the same side of the transversal. 3 and 11 are the interior angle of the same side. Yeah, it is true. इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. 4 and 14 are corresponding angle. 4 and 14 are corresponding angle. Yeah, it is true because of the same side of a parallel line, वो transversal line. 7 and 8, 7 is equal to 8 and 11 is equal to 14. 7 is equal to 8. Yeah, it is true. And 11 is equal to 14. It is also true. ये alternate angle है ना. Yeah, both are true. Alternate angle.
एंगल 2 + 4 इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 11 + 13 इज इक्वल टू 80. 2 + 4 180. Yeah, it is correct. Straight line. 1 and 3 also formed a straight line, so sum of these two angles is equal to 180 degree. 11 13. Yeah, it is true. 11 + 13 is equal to 180. Now question number 3. Give the measure of angle A B C D E F and G in the given region. ये A इज इक्वल A मालूम कर लीजिए पहले. A + 55 इज इक्वल टू 180. A + 55 इज इक्वल टू 180 मीन्स एंगल A इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लेंगे 125 डिग्री. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ फिगर इज गिवन योर बुक. ओके, A + 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट हियर by linear pair A + 55 is equal to 180. So angle A is equal to 180 minus 55, we get 125 degree. Now A की वैल्यू मालूम हो गई आपको 125 डिग्री है. अब देखिए जो B होगा वही 55 होगा. Such type of angle is known as the vertically opposite angle. Okay. Now angle C and angle A are equal. So angle C is equal to angle A 125 डिग्री. ये भी vertically opposite angle हो गए. Okay. Angle F is equal to 55. These two type of angle is known as the corresponding angle. Right here. Corresponding angle. एंगल G इज इक्वल टू एंगल F. ये क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंगल D इज इक्वल टू C. इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. E इज इक्वल टू D. एंगल E इज इक्वल टू एंगल D. ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन. आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लीजिए. क्वालिटी में जाइएगा, उसमें 420 ले लीजिए, 360 ले लीजिए, वो बेटर क्वालिटी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट पार्ट. दिस फिगर इज गिवन इन योर बुक. सी द फिगर. Value of B and value of Y. The value of B is equal to 80 degree and value of Y is equal to 80 degree already given in your first part of the question number 5. See here, angle B and angle C. If both angle is known as the corresponding angle. If the corresponding angles are equal, then we can say that these two lines are parallel. Suppose line AB and second line as CD. So if angle B is equal to angle C, which are the form of corresponding angle, if the corresponding angles are equal, we can say that AB is parallel to CD. देखिए ये कन्वर्स थ्योरम आपका एक पेज नंबर 193 पे दिया गया, उसी का अपोजिट है. अगर से ये पैरेलल साइड है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे. इसका अपोजिट होगा कि अगर से करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होगी. इसका थर्ड पार्ट, एंगल B 70 दिया गया, एंगल Z 70 दिया गया. एंगल B यहाँ पर है, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल Z यहाँ पर है 70 डिग्री. अगर एंगल B 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 70 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है. ओके, अब ज़रा सा देखिएगा, अगर से एंगल Z और एंगल Y को ऐड किया जाए तो क्या क्या 180 बनाता है. देखिएगा, एंगल Y + Z इज इक्वल टू 70 + 70 मिल जाएगा हमको. मीन्स दोनों का सम Y एंड Z का सम कितना मिल रहा है? 140 डिग्री मिल रहा है. अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हमको ये 180 मिलना चाहिए था. मीन्स एंगल Y की वैल्यू 70 डिग्री नहीं होगी. अब अगर से एंगल Y की वैल्यू 70 डिग्री नहीं है तो B और Y सेम नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकती. या आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बेहतर होगा ऐसे. एंगल Z + Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ये तो स्ट्रेट है, कन्फर्म है.
एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। मीन्स एंगल Y की वैल्यू हमने निकाला 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110। अब देखिए Y की वैल्यू क्या मिल गई, 110 मिल गई आपको, और B की वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या दिया था, 70 डिग्री दिया था। एंगल Y नॉट इज इक्वल टू एंगल B, इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल नहीं है तो AB इज नॉट पैरेलल टू CD। आई थिंक इट इज़ बेटर सोल्यूशन। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस सोल्यूशन। ओके, यहाँ तक आने के बाद एंगल B इज नॉट पैरेलल टू line AB is not parallel to CD, right here is same as you can solve remaining part of the question. See third part, A is equal to 40 and Y is equal to 40. In figure A is equal to 40 means angle C is also equal to 40 by vertically opposite angle. अब ये दोनों को इंटीरियर है, अगर से को इंटीरियर का सम 180 हो जाए तो हम कहेंगे ये लाइन पैरेलल है। तो एंगल C कितना हो गया आपका, वही जो कि एंगल A है, मीन्स एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नाउ एंगल C और एंगल Y अगर ऐड करें तो 40 प्लस 40 कितना मिल जाएगा, क्योंकि Y की वैल्यू भी 40 दिया है। C 40 यहाँ से मालूम हो गया, C प्लस Y करेंगे तो हमको मिल जाएगा 40 प्लस 40 80 डिग्री, ओनली 80 डिग्री, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम 80 आ रहा है, C एंड Y का सम 80 आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये कोई इंटीरियर एंगल नहीं है, सॉरी ये लाइन आपकी पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती तो क्या होता, कोई इंटीरियर का सम कितना मिलना चाहिए था, 180। अभी हमको सम कितना मिल रहा है, 40 प्लस 40 80 डिग्री। सो इट इज़ नॉट पैरेलल लाइन फॉर थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ़ B इज इक्वल टू 100 एंड X इज इक्वल टू 80, वेयर इज B 100 एंड X इज इक्वल टू 80। अगर B 100 है तो D कितना होगा, ये भी 100 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स D की वैल्यू क्या मालूम हो गई आपको, 100। नाउ ऐड दीज टू नंबर, D प्लस X मीन्स 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, मीन्स इन दोनों का सम कितना मिल रहा है, 180। तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम एज यू कैन सॉल्व फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, ट्राई टू सॉल्व। Now question number 6, a straight line cut two other straight line and following are the pair of alternate angle in the different cases. Show in which of these are two straight line are parallel. ये कहा है इन्होंने कि दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है और ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के फॉर्म में है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल थी या नहीं? अगर से पैरेलल लाइन होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसमें देखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू एक 35 है, एक 36 है, सेम नहीं है ना, तो लाइन पैरेलल ना रही होगी। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम है तो लाइन पैरेलल है, इसमें भी वैल्यू सेम है तो लाइन पैरेलल है, इसमें वैल्यू डिफरेंट है तो पैरेलल लाइन नहीं है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, वी नो दैट इन केस ऑफ पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए अल्टरनेट एंगल इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट पार्ट में नहीं है, एक 35 है एक 36 है, तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। आप यहाँ पे लाइन्स कर लीजिएगा, बेटर है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। सेम एज हियर 80 एंड 80 डिग्री, सो लाइन्स आर पैरेलल। ओके, नो 7th पार्ट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फिर से वैसे जैसे 6th क्वेश्चन था, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए अगर से लाइन पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट में 121 एंड 150, दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। If the angles are equal, corresponding angles are equal, then we can say that lines are also parallel. Okay, same as you can solve remaining part of the question number 6 and question number 7th. Now start question number 8. In question number 8, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर से इनको ऐड कर लें तो सम कितना मिलेगा, 120 प्लस 50 इज इक्वल टू 170 डिग्री ना, मिलना कितना चाहिए था, 180 डिग्री अगर से पैरेलल होगा। देयरफॉर इन दिस केस लाइन्स आर नॉट पैरेलल। फाइंड द सम ऑफ दिस टू नंबर, 135 एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल। एड दिस टू नंबर, if the sum is 180 we can say that lines are parallel. Here if the sum are not is if the sum of these two angle is not equal to 180 degrees, so lines are not parallel, means इसमें 180 आएगा so parallel है, इसमें 180 आ रहा है, lines parallel है,
इसमें और इसमें 180 नहीं मिलेगा आपको, सो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर 180 आ जाए तो वहाँ पे लिख दीजिएगा सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो लाइन्स आर पैरेलल। अगर 180 नहीं मिलता है तो लिख दीजिएगा सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल, दैट्स ऑल। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया आपके। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रॉम 1 to 8 revise all the question, all the example, and solve remaining part of the questions which I am not discuss here. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. From question number 9 we will discuss in next video. We already attached link of the next video in this video also. If you want, you can watch the full video, go through the link. Thank you everyone, goodbye.